ये इनसे पूछिए, ये बताएंगे कितनी कितनी स्विमिंग करनी पड़ी यामी पुलकित. See, right in the opening shot, I'm all in the lake. It was a dirty Virat lake, but बचाने के लिए पुलकित आए वहां पे. no, but I think jokes apart, thank you Vivek sir, I think for this opportunity. I think every actor wants. I think with Curtsy T series, I've got to do 2 back to back, and thank you Pulkit for being able to bear me, if you didn't. So, and this is of course, and I think I'm sure आप सबके zen में ये होगा, and I've been, you know, that's the first thing. अच्छा Sanamre now just suddenly Junooniya, then is it Sanamre 2? Not at all. It is not Sanamre 2 at all. And आप देख सकते हैं that it's entirely different. It's a different story altogether. We have a different director altogether. It's a different character. सिर्फ जो lead cast same है, but it's entirely different. And we hope that we get to entertain you and not claiming anything. Oh, it's some, as Sir said, some experimental drama or anything. It's a love story. It has romance. It has drama, intensities, tears, but all happy and some amazing music for every occasion, every genre, which I hope, I'm sure actually that you all will love. We already got a lot of love for our trailer, and today 2 songs got launched and getting good feedback. So thank you so much. The entire, I think, you know, all these people responsible, I think, for this song, Nachange, my brothers, Tulsi Kumar, Neeraj Shrita, I think they're all here. So thank you so much for making it really special. Over to you now. पुलकित is like मैं क्या बोलना है, मेरे को हो गया है ना, सब तो 1 million views जैसे इसको अपलोड किया गया था ट्रेलर, अब 2 हो गया. जाते ही तो एकदम 2 दिन हो गए ना अभी. इंटरनेट तो पगला दिया था हमने. So what do you have to say on that? Firstly, hello everybody. Thank you so much for taking your time. And We can't bore you so much. Arjay, is that Arjay Alok? We can't bore you so much. You can't be on your messages while we talking. Please, sir. Please. नहीं वो तो लाइव ट्वीट करें. Great. We need you. टैग करें प्लीज. We need more followers. All right. So what we'll do is we were talking about the music. So यहाँ पे कुछ कमाल के लोग हैं. So ये होते हैं तो सारी चीजें धमाके होते हैं, बिकॉज इट्स ओल्ड सॉन्ग एंड इट्स सच अ बिग हिट सॉन्ग. तो जब भी आप नए गाने को टच करते हो तो बहुत खतरा होता है. अभी हमने हाई हिट्स बनाया था, थैंकफुली नाउ पीपल टेल अस दैट दे रिमेंबर द न्यू वन. सो वी होप कि ये नचांगे सारी रात को एक नई तरीके से लेके आए हैं. एंड इफ यू रियलाइज दैट एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत अलग तरीके से, क्योंकि ऐसे तुलसी को आपने नहीं सुना है. सो अभी वुड लाइक टू से कि वी हैव लॉन्च्ड हर अगेन इन अ डिफरेंट अवतार. Yes, I totally agree with that because this is actually my first dance peppy number. Of course, इससे पहले मेरा सया सुपरस्टार आया था, but this was recorded much before that. और ये गाना सुन के मुझे वो गाना मिला. So this is a different avatar of me that everyone will get to hear. और everybody is surprised how can Tulsi sound.
Next number, ladies and gentlemen, we have another surprise for you. Gana composed by the one and only Jeet Ganguly Saab. Yes. And हमारे साथ यहाँ पे अरमान भी हैं. So I'll invite him on stage. But before that, ladies and gentlemen, पुलकित जो अभी हम बात कर रहे थे chemistry की, as Yami said. तो chemistry की अगर बात करें, हमने देखी है on screen, off screen. फिल्म के सेट्स पे कैसे होती है यामी? It's like really difficult to handle. जैसे अभी बोल रही थी, ये बोलती रहती है और मैं चुप रहता हूँ. अच्छा, पूरे टाइम ऐसे होता है? पूरा टाइम ऐसे ही. मैं तो शांत रहता हूँ. आप सर से पूछिए. हमें सर के पास Wanted to ask, sir. सर व्हाट इज दिस सर? नहीं, एक्चुअली हम लोग बातचीत किए बगैर ही फिल्म बन गई. हम लोग बात नहीं करते. ये भी नहीं बोलती है, ये भी नहीं बोलते, मैं भी नहीं बोलता हूँ. हम तीनों नहीं बोलते. मैं सिर्फ तभी बोलता हूँ जब कोई नहीं होता है. तो ये फिल्म बिना बातचीत के बन गई. और इश्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बिना बातचीत के जब इश्क हो, उसका मजा है. सर ऐसा दिल पे लगी है. साइलेंट लवर सर. और जुनूनियत इज एक्चुअली नो वर्ड. ऐसा कोई शब्द नहीं है. ये कॉइन किया है. ये शब्द नहीं है सर? नहीं है. प्यार भी कोई चीज नहीं है एक्चुअली. कहाँ है? दिखाओ. ऐसे सवाल पूछते हैं तो प्यार दिखाओ. कहाँ से दिखाओ? मेरी जिंदगी में होता है मैं. हाँ सर. क्या सवाल किया था? सवाल यही था कि जुनूनियत जो फिल्म है. एक्चुअली 1.5-2 साल पहले जब मैं बहुत ज्यादा हेट स्टोरी बनाने के बाद, और हमें पता नहीं था कि हेट स्टोरी भी चल सकती है, और जब चल गई तो सबने कहा हेट स्टोरी 2 बनाओ, 3 बनाओ. तो मैंने कहा अब डिटॉक्स करने का वक्त है. और मैं डिटॉक्स करने के लिए गोवा गया हुआ था. तभी मुझे आई मेट अ वंडरफुल लेडी. इनफैक्ट शी इज हियर विद अस, प्रीति. आई वुड वांट प्रीति टू कम ऑन दिस डे, क्योंकि इस फिल्म का जो जर्म है वो यहाँ से निकला हुआ है. ये शी गॉट मी अ थीसिस ऑन लव, you know, a big thesis on love. And I then started, I always thought never in my life I will make a love story. आप देखें, मैं different genres में काम करता हूँ. I don't repeat my genre. I thought I'll never make a film on love story. But this is important to tell you since you are here. आपको पता है, लोगों को ऐसा लगता है कि the maximum research on Google is on sex. It's not true. The maximum number of searches are on love. सर मुझे तो पता था. आपको पता था? मुझे मैंने तो कभी सेक्स सर्च भी नहीं किया सर. तो आप भाई, कुछ लोग किस्मत अच्छी होती बिना सर्च के मिल जाता. हमें करना पड़ता है. हमें बहुत सर्च करना पड़ता है. But anyway, and then the second thing I read by a great management guru. This guy has been researching for last 40 years, and whenever somebody dies, he goes there, and he works in MIT. He goes there and he sits and spends a lot of time with those people. If somebody informs him, और जो चीज, this is very strange, and he found that nobody in this world on his deathbed ever said कि काश मैंने और पैसे कमा लिए होते, काश मैंने और काम कर लिया होता, काश मैंने और फैक्ट्रीज खोल ली होती, काश मैंने और फिल्म्स कर ली होती, या काश मेरी और हिट हो गई होती. यू नो व्हाट एवरीबडी सेज? काश मैंने लोगों से और प्यार किया होता. अगर यही जीवन का सत्य देना, ही सेड ओके प्रीति मेरी बहुत झगड़ा. प्रिया ने, मैं अपनी बीवी से इतना नहीं झगड़ा जितना मैं प्रीति से लड़ाई की. मैंने कहा व्हाट शिट यू आर गिविंग मी, आई डोंट वांट टू मेक दिस. But then when I took this on, I said, लव स्टोरीज देखिए चेंज नहीं होती है. सबकी, इंसान की जिंदगी की लव स्टोरी वही रहती है. और दुनिया का सबसे क्लीशे अगर कोई सेंटेंस है तो वह है आई लव यू. और पहले दिन से, यानी जब इंसान बना हुआ शायद तब से लेकर अभी तक, दैट्स द ओनली वे वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, ट्रांसलेटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. आई लव यू. तो मेरे ख्याल से लव जो है, तो मैंने कहा ये क्या चीज है जो आदमी को इतना ड्राइव करती है. एंड देन वी डिड, मैं फिर उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हुआ. एंड आई ट्राई टू थिंक लाइक यंग, मैं चूंकि छोटे शहर का एक मिडिल क्लास आदमी हूं, तो मैंने उस माइंडसेट से देखने की कोशिश की. हाँ, पर अब आप बहुत बड़ी वो है. पर मैंने उस नजर से देखा. तो दिस फिल्म बेसिकली इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्मॉल टाउन बॉय एंड गर्ल who either have just fallen in love or who are about to fall in love or who have just broken up in love. तो मैं इसकी टारगेट ऑडियंस बड़े अच्छे से डिफाइन कर देता हूं. ये उन लोगों के लिए, उसी हिसाब से डायलॉग्स है, म्यूजिक है. एंड आई थिंक फॉर द we wanted, Bhushan and I decided that one thing we'll do, लव स्टोरी की जो रूह होती है उसके डायलॉग्स और म्यूजिक में होती है. और मैंने इमेजिन किया, मैं बड़े बोल नहीं बोलना चाहता हूं, पर मैंने ऑनेस्टली बता रहा हूं, सिंसियरली मैंने कहा अगर यश जी डार्क के वक्त में कैसा सोचते होंगे, उस तरह से अगर मैं सोच के देखूं तो क्या होगा. सो वी अटेम्प्टेड दैट. ये बड़ी समाज से, जीवन से ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अनरियल, पर आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके दिल को छूती है. सेकेंड थिंग इज, किसी भी फिल्म की जो है कास्टिंग 50% बैटल होती है. और मैंने एक फिल्म देखी थी फुकरे, एंड आई सॉ, जब भूषण हमारी बात हुई, आई सेड कि दिस इज द बॉय, दिस फिल्म हैज टू बी डन. क्योंकि आर्मी सोल्जर्स बहुत बनते हैं हमारे, पर नॉर्मली सोल्जर्स ऐसे बनते हैं एक सीन में एक शर्ट पहन ली और उसके बाद काम खत्म, तो कुछ और हो गए. पर हियर ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ सोल्जर थ्रू आउट द फिल्म,
एंड मेरे दिमाग में वो राजेश खन्ना की आराधना की इमेज बड़ी स्ट्रॉन्ग थी व्हेन ही कम्स बैक अगेन फरीदा जलाल वाले ट्रैक में. So I said, who can be that boy? And then that's how I found Pulkit. First time we met and we clicked, it started. अब सवाल था कि एक ऐसी भंगड़े की क्वीन जैसी लड़की कहाँ से लाए, खालसा कॉलेज अमृतसर वाली, जो कि सिर्फ वही नहीं हो, संस्कारी भी हो, मॉडर्न सिनेमा में थोड़ी सी स्टाइलिश भी हो, थोड़ी अर्बन भी हो, थोड़ी रूरल भी हो. तो मैं अपने ऑल्टर ईगो को ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते यामी गौतम मिल गई. A very beautiful girl, very gorgeous girl, great person to work with. And ये भी टाइम को लेके काफी बहुत मेहनती है, बहुत अच्छी है. इस फिल्म में आप देखेंगे तो आप इनको एक एब्सोल्युटली न्यू केमिस्ट्री, न्यू कपल, वेरी ब्यूटीफुली जॉब डन, ग्रेट म्यूजिक बाय एवरीबडी. एंड आई थिंक लव स्टोरी में से ज्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता. लव स्टोरी की रूह मैंने बताया, डायलॉग्स, अगर इस फिल्म को आप देखेंगे तो आपको फिर से वही पुराने बहुत खूबसूरत डायलॉग आएंगे. इसमें बड़ी शेरो शायरी भी है और सिर्फ कुमारी शायर नहीं है, मैं भी थोड़ी शायरी कर लेता हूँ. भाजी ने लिख लिया शुरू में ही, उन्होंने कहा एक टाइटल सॉन्ग में अभी अलग बनाने ज्यादा हो ही जाएगा. है ना. अभी प्रीति दिस वंस फॉर यू, अमेजिंग स्क्रीन प्ले और बहुत बहुत काम किया गया इसके पीछे. जैसे उन्होंने बोला झगड़ा होता था, भाई से जितना नहीं होता उतना आपसे होता था. Absolutely. तो क्या कैसे निपटते थे उस सब से? Experience. I've been married for 24 years, so. सीधे पति पत्नी पे ठीकरा फोड़ दो. अच्छा यामी, दिस यहाँ पे एक और गाना है, अभी आप सबको उसको सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा. यामी दिस वंस फॉर यू, टेल मी, लक्ष्य में कौन सा गाना? अभी सरप्राइज है. लक्ष्य में हमने ऋतिक रोशन को देखा था, एक कड़क आर्मी ऑफिसर, और तब से लेके अब तक बड़ी तारीफें होती हैं, और यहाँ पे इनको देख रहे हैं. कौन ज्यादा कमाल का लग रहा है, ऋतिक की पुलकित? Right now she's working with Hrithik. So I think दोनों बहुत काबिल हैं. नहीं, ऐसे नहीं होता. दोनों ही अपनी जगह बहुत काबिल. ऐसे कर. That was very different. Of course, Hrithik is one of, I think, the most. It's undoubtedly, without any debate, I'm sure we'll all agree, he's one of the best actors we have. He's a really perfectionist to work with. But वो बिल्कुल एक अलग कहानी थी. And this is primarily it's a love story, I think. And I think on core and ये बिल्कुल, I think no one could have, I think, justified playing Jahan better. उनका देश का प्यार था, मेरा भेष का प्यार है. इसका जी हाँ, सिर्फ हमारे चैनल पे, a lot of you can tag that, हमारे चैनल पे पता लगा है. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जो सरप्राइज था, एक और सरप्राइज, एक गाना हमने देख लिया और उसको महसूस कर लिया. नाउ मे आई इनवाइट ऑन स्टेज द वन एंड ओनली, द सुपर म्यूजिक डायरेक्टर जीत गांगुली दादा. एंड ऑफ कोर्स द बर्थडे बॉय है वो आज के हमारे, उनका जन्मदिन है भाई, तो सब लोग यहाँ पे उनको विश करेंगे. एंड साथ में द डूड अरमान मलिक, लेडीज एंड जेंटलमैन, हो जाए बरसात इज द सॉन्ग जो कि इन लोगों ने दिया है. एंड हमने स्क्रीन जीता था, रिटर्न गिफ्ट भी चाहिए. हैप्पी बर्थडे. यार बर्थडे है, कुछ ऐसा थोड़ा दुखी थोड़ी बता दिया मैंने. हाँ एग्जैक्टली, वीट्रो संजन. Happy birthday to you. एवरीबॉडी Happy birthday to Jeeta. Happy birthday to you. कंपोजर होने के साथ साथ ही इज जस्ट अमेजिंग, ही इज एन अमेजिंग सिंगर. तो अभी उनकी आदत गई नहीं, उन्होंने कहा सब गाने मैं भी, हाँ हैप्पी बर्थडे. मुझे फिर याद आया, अच्छा मेरा ही बर्थडे है. दादा आप जियो हजारों साल के दिन हो 50,000. एंड नाउ हो जाए ये गाना, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ मेरे को. Actually, this is the second song that I've sung for Pulkit. So the first one was "Hua Hai Aaj Pehli Baar" from Sanam Re. Right. And this is the second song, and I'm really excited for this क्योंकि ये मेरा पहला गाना है with Jeeta. I've never sung for Jeeta before, and this is the first song with Jeeta, and for Vivek sir as well for the first time. So it's a lot of firsts together. So let's. देखो सब लोग हाजिर हैं यहाँ पे, और सबसे बड़ी बर्थडे गिफ्ट आज ही मिला हमको. एंड थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you so much, Dada. Thank you, Arman. That was superb. Yeah, thank you. Thanks a I'd like lot. to add something. Yeah, please, please. Okay, today feels like the graduation ceremony of a child I had years back, which then Vivek adopted and raised. So I'm really grateful for for this opportunity, and everybody who helped nurture this dream, Mr. Kishan Kumar, Mr. Bhushan Kumar, and the two of you who brought the characters to life. So thank you so much. This is my first. It will always be special. Vivek sir, Dimple and Vijay, they're here. Can we call them also? Yeah, they're the Come, choreographers. please come. They're the choreographers. Let me introduce Got a extremely talented choreographers. This is their first film, and I Not met the last Vijay one just by for sure. chance for 5 minutes, and I said, "You have to choreograph for me," and he came and he has done a great job, both of them. We have 3 Gangulis here.
आपकी तो फर्स्ट फिल्म है, मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ कैसे फिल्म बनाई जाती है. वी आर ऑल लर्नर्स. एवरी फिल्म इज अ डेब्यू फिल्म. Right. Dada, you wanted to say something about the song, please? Yeah, definitely. First of all, grateful to the big bro of our industry, music industry, Bhushan ji, and Priya, of course, and the captain of the ship. इतने समझ है लिरिक्स का, मेलोडी का, वंडरफुल. A big round of applause for him. Oh. Vivek ji, thank you so much. Thank you everybody. Pulkit, Yami, excellent performance, and our new choreographers. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए. And एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि I'm fortunate. We have today a singer like Arman. Arman and Amari Kisson, they are very close to my heart, and definitely डब्बू भाई हमारे genius music composer. और आज मेरा फर्स्ट गाना है अरमान के साथ. इतना सुर में गाता है, आपने देखा लाइव परफॉर्मेंस किया, और कोई ऑटो ट्यूनर नहीं है ना, विदाउट एनी पिच करेक्शंस. गॉड ब्लेस यू अरमान. Thank you so much, Dada. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Arman. Thank you, sir. Ma'am, आप लोग ने कमाल की कोरियोग्राफी की है. Thank you, Jeet Dada. God bless. Thank you so much. Thank you so much. Happy birthday Thank you. once again. Thank you so much. Thank you. Thank you. And now, ladies and gentlemen, it's over to the media. आप लोग के मन में जो भी शक सवाल है वो सब you can shoot now. Thank you so much, Dada. जी. Hi Pulkit, hi Yami. This is Alok from. Hello. मेरा सवाल है कि किस चीज का आप दोनों को जुनून है असल जिंदगी में? इन जनरल आपको मतलब उस जुनून के लिए आप कुछ भी कर जाते हैं? Movies. सर फिल्मों के अलावा क्योंकि असल जिंदगी अरे कमाल है. मतलब ये तो सबसे इजी आंसर. सबसे इजी. नहीं, of course, movies. And I'm very fond of music as well. I hope I get to learn a musical instrument as well. मेरे घर में पियानो भी पड़ा हुआ है और उसमें मुझे हैप्पी बर्थडे भी नहीं बजाना आता, तो सिखा देना यार प्लीज. So yeah, I since my childhood I used dancing and all that stuff. So I think yeah, anything to do with not studies I'm very fond of. यामी आप कुछ ऐड करें? I think जुनूनियत, I think as sir said, प्यार के लिए, पर वो प्यार जरूरी नहीं है सिर्फ एक रोमांस के पर्सपेक्टिव से. that is for family, for me, that is for my work. और मेरे लिए ये ही दोनों आई थिंक चीजें बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. फर्स्ट फैमिली फर्स्ट. तो हाँ, जुनून है अपने प्यार के लिए, अपने जिनको मैं प्यार करती हूँ, which is my family and my work which I worship. विवेक, मेरी आपसे उन दिनों बात हुई थी जब आप शूटिंग कर रहे थे फिल्म की. उन दिनों आई थिंक बाढ़ वगैरह का भी मामला था. वो दिन जब आज याद आता है तो क्या फीलिंग्स आती हैं? जरा शूट वाइज अगर आप बताएं. एक तो यार फिल्म बनाते हैं तो एक समझ में नहीं आता है. आज समझ में आ रहा है कि आई वॉज वर्किंग विद सो मेनी टैलेंटेड पीपल, यू नो. तब तो हम लोग फिल्म बनाते रहते. सडनली आई एम सीइंग ऑल ऑफ देम आर सिटिंग हियर. आई एम वेरी लकी टू वर्क विद टैलेंटेड पीपल एंड सुपर टैलेंटेड पुलकित ऑलवेज. नहीं, उस वक्त हम जब कर रहे थे बड़ी बाढ़ आई थी कश्मीर में. आप जानते हो कश्मीर में शूट करना आसान बात भी नहीं है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. एक्चुअली एक रात का आपको किस्सा बताता हूँ. हम लोग शूटिंग करके आ रहे थे. पुलकित तब नहीं आए थे. यामी का कोई सीन था और बहुत दूर सोनमर्ग वोनमर्ग था. 2-3 घंटे का ड्राइव था. जब मैं लौट के हम आ रहे थे उसमें काफी सारी कश्मीरी लड़कियां काम कर रही थी, 25-30. तो जब हम लौट के आ रहे थे तो सडनली रात को हमारी सारी गाड़ियां रोकी एक गाँव में. एंड वो टॉर्च लेके सब डंडे लेके खड़े हुए थे. बाद में पता चला कि कश्मीरी में काम करने की इजाजत नहीं है. तो अगर लड़की मिल जाती तो हम सबको पकड़ के बहुत मारा पीटी हुई होती. तब बॉम्ब भी, मिस्टर मोदी वॉज विजिटिंग कश्मीर, तो काफी बॉम्ब फट रहे थे. और ये भी एक सवाल उठा था 2-3 बार कि हम आगे जाएं कि नहीं जाएं. प्रोडक्शन वाले एज यूजुअल कहते हैं कि सर रिस्क मत लो, लेकिन मैं थोड़ा जाबाज टाइप का डायरेक्टर हूँ, कहीं भी घुस जाता हूँ. तो हमने वो रिस्क ली. एंड थैंक्स यामी फॉर इतनी ठंड में हिंदुस्तानी हीरोइनों को तो उनके लिए खास तौर पे तालियां बजानी चाहिए. ईश्वर जाने कैसे इतनी बर्फ में कम कपड़े पहन के शूटिंग कर लेती हैं. इतनी ठंड थी, मतलब यानी आंखों से खून बहता था. बट शी डिड इट. आई डोंट नो, दूसरी बार आपका एहसान मन रहूंगा. Really, big thanks to you. I think always a director, because I'm not saying because Vivek sir said it and standing here, but for any actor, I think एक comfort level जो एक होता है डायरेक्टर के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है. And we can overcome anything, any bad, any hurricane, any tornado if your director is understanding and gives you that comfort and warmth. I'm sure you agree with me. कश्मीर is one of the most difficult places to shoot. जिसने कश्मीर में शूट कर लिया उसने गंगा नहा ली. Sir here. Hi, I'm Bhavya from Book My Show. We are. Yeah. Hello. Hi. Hello, hi. Are First you of all, gonna send congratulations mails to of the reviews entire. as well? Sorry. Are you gonna send mails of reviews as well? Of course, of course. Please, there's one more film releasing with us. I think उनका भेज देना. Definitely, definitely. So first of all, congratulations to the entire team for the amazing product that we see on the screen.
Sir, my question to you, the director, is that the movie is called Junooniyat, and we saw movie like a similar movie about the whole madness and passion of love. It was called Fitoor, which released in the starting of the year. So, is there any inspiration that we see that got drawn, or is it like completely different? समझा नहीं क्या Sir, इंस्पिरेशन फितूर से मिला है हाँ, because Fitoor being again about the madness and craze and passion of हाँ love. एक्चुअली ऐसा हुआ है, जब आधी फिल्म शूट कर चुके थे तब फितूर की शूटिंग कश्मीर में शुरू हुई हमारे सामने ही। हम जब शूट कर रहे थे पहलगांव में, तो मैं सुबह सुबह उठा, मैंने फोन लगाया, मैंने कहा मैं आप लोगों से मिलने आता हूँ। मैं उनके सेट पे गया, 2-3 घंटे में बैठा, कहने लगे आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं इंस्पायर हो रहा हूँ। और मैं जब बहुत इंस्पायर हो गया उनकी फिल्म के साथ, तब मैंने कहा आपकी फिल्म आपको मुबारक है, आपका इंस्पिरेशन तो मैंने ले लिया है, अब आप चाहे कहीं भी, हम तो जाके हिट बनेंगे। तो इस तरह की एक कहानी। No, yeah, there's been no inspiration. Another question. I'm sorry, but I mean, what can I say? I know, sir, you're from the advertising world, so that kind of an answer was kind of expected. A question to both of y'all. You look amazing, and I'm sure everybody out here agrees Thank with you. me. So, about the things that we keep hearing about this amazing Jodi, how true are those rumors? Which You look rumors? great on screen. Those are not rumors. You know what I mean, Yeah, right? उनको देखने दे यार, एक Fact, एक यार अब बहुत हो गया, थक गए, ऑडियंस भी थक गए, बोर हो गए, हम लोग भी हो We गए। want to know the real thing. Like, what is it? अभी तो हाँ हम भी बोर हो गए हैं। सच में, there is, I don't know, it's very simple. I think we're here for work. I think I take it as a compliment. He's always मैं said. यामी से ही पक गया हूँ। इतने सवाल हो चुके हैं, तुम प्लीज दूर खड़ी हो। Done, yeah. I think we just want to. I think we known for our work. For I think जैसे सर ने कहा, बहुत मेहनत से पिक्चर बनती है। But I fell in love with you. She became my muse for the film. So और मेरे ख्याल से किसी भी क्रिएटिविटी की जो सबसे खूबसूरत मंजिल हो सकती है वो ये हो सकती है जब क्रिएटर और उसके साथ जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में इश्क हो जाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप नहीं चाहेंगी कि आप लिखते लिखते अपनी जर्नलिज्म के साथ आपको इश्क हो जाए? तो मेरे ख्याल से वो बहुत Another अच्छी बात है। advertisement answer. Thank you. हाय, मेरा सवाल है विवेक आपसे कि ये फिल्म सनम रे से पहले बन चुकी थी और ये बाद में रिलीज हो रही है सनम रे पहले, इसकी कुछ खास वजह? क्योंकि हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद रिलीज करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसी वजह नहीं। They just tossed. It was in house TC. They just tossed a coin. Sanam Ray won. Tossed that. नहीं ऐसा नहीं था। ऐसा था हमारा एक सेक्शन था बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमें सिर्फ बर्फ में शूट करना था और फिल्म शूट करते करते हमने खत्म किया तो तब तक मई और जून आ चुका था और उसके बाद देन आई हैड टू गो बैक इन दिसंबर जनवरी और वो भी हमें पक्का पता नहीं था कैसे जाएंगे क्या करेंगे बिकॉज देयर वाज अ प्रॉब्लम। और हमारी फिल्म में वीएफएक्स काफी आपने देखा हुआ लेक और ये और दुनिया भर की चीजें, तो वी वर लिटिल अनसर्टेन अबाउट कि क्या होगा एंड आई थिंक दैट्स व्हेन द कंपनी मस्ट हैव डिसाइडेड that they should release a film which was also ready. So, and also I got very busy with my another film which released last week. मेरा सवाल विवेक अग्निहोत्री से फ्रॉम मकान में शूटिंग के दौरान आपको हाँ यस यस शूटिंग के दौरान आपके आर्टिस्टों में किस प्रकार का जुनून देखने को मिला आपको? देखिए जुनून कई तरह के होते हैं। असली जुनून जो जिसको मैं मानता हूँ जुनून कि आपने जो देखिए बाकी सब बातें मैं ईमानदारी से बोलूं आपको इसका जवाब दूं ईमानदारी से कि ऐसी बाकी सब बातें देखिए बेकार है। असली चीज जो मैटर करती है कि आपने जो सोचा था विजुलाइज किया था जिस कैरेक्टर को वो कैसा पर्दे पे निकल के आया है। बाकी तो सब बातें ये था नहीं था ऐसा थोड़ी है कि घर में 2 भाई रहते हैं और उन दोनों में बहुत राम लक्ष्मण जैसा प्यार होगा तभी वो घर में खुशी होगी। तो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज ट्रांसलेटेड ऑन स्क्रीन। व्हेन यू विल सी दिस फिल्म यू विल रियलाइज इट। मैं इसलिए आज ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं लोग देखें और तब उनको समझ में आएगा कि हाउ सिंसियरली बोथ ऑफ देम एंड नॉट बोथ ऑफ देम दे आर अदर एक्टर्स रिश्ता भट्ट गुलशन देवैया दे आर ग्रैंड मदर्स ग्रैंड फादर देयर लॉट्स ऑफ एक्टर्स इन दिस फिल्म। इनफैक्ट इट्स अ बिग फैमिली बिग फैट Hindu Indian family and when you see the film you will realize that everybody has given so much and under let me tell you हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम रहता है हिंदुस्तान में। उसके बाद टू शूट इन प्लेसेस लाइक कश्मीर and Shimla and Jail is not easy. It's very extremely difficult. पानी नहीं होता है गर्म। एक्चुअली आपको बताऊं जब हम सोनमर्ग में शूट करने गए थे दिस इज रियली समथिंग कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम होता है ऐसा कि लोकेशन के लिए कोई इतना ज्यादा एडवेंचरस हो जाए। तब वो एरिया बंद हो चुका था। वी वर वॉर्न्ड वी वर नॉट। तो हम लोग कुछ नहीं था तब मैंने जबरदस्ती कहा है कोई प्रोडक्शन वाले होंगे वो जानते होंगे बहुत लड़ाई लड़के टू आई बिकेम अ बैड गाय बट उसके बाद लड़ाई लड़के
मैं आर्मी वालों को मैनिपुलेट करके, आई एम सॉरी टू से दैट, सब कुछ करके मैं किसी तरह से वहां गया और वहां 1 या 2 ही होटल रुके थे जिनमें गर्म पानी भी नहीं था, बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कंबल नहीं थे, कुछ नहीं था, सिर्फ 4 दीवारें। पुलकित भी नहीं था। हाँ, पुलकित भी नहीं था। It was just me. और उसमें जो कपड़े और जैकेट्स हम पहन के गए थे उसी में सोए और हम 2 दिन उस तरह से हमने शूट किया। इट वॉज आई डोंट नो, इसी को कहते हैं जुनूनियत शायद, जब आप कुछ चाहते हो और उसके लिए आप किसी भी हद तक जा पहुंचे। मैं इस फिल्म के लिए सोच रहा था क्या है वो जुनूनियत, शायद यही है वो जुनूनियत। ओके, मेरा सवाल यमी और पुलकित से है। You know, I would just like to add one thing before we move ahead. We got a lot of support from the army. We must not forget that. It was very difficult to shoot and get permissions to shoot at the places that we shot at. And these army guys, they helped us a lot. They provided us with a lot of stuff to keep us warm. And most of the locations that you see where the army base is set up in the movie, they are all real locations. They are all actually the bases that were let out to us कि आप इसमें शूट कर लीजिए, लेकिन सिर्फ इतने टाइम से इतने टाइम तक। एंड they were great. They made it really easy for us. Localized, I think they were extremely sweet. In the localized. ओके, मेरा We'll take one last question. मेरा सवाल यमी और पुलकित से दोनों से जानना चाहूंगा। हर साल बहुत कहाँ से? सर, आपको मेरी आवाज सुनाई देगी काफी? नहीं सर, पहले तो नाम स्पीकर से पे थोड़ी आवाज नहीं। हेलो, कैन यू सी? ओके, हाँ, अभी लाइट रिफ्लेक्ट हुई। ओके, आप दोनों से मेरा सवाल है, यू नो, आपने सर मेरा एक तो नाम गलत भी है, मैं यमी नहीं हूँ, मैं यामी हूँ। ये यामी तो सीख सुना है, ओह, आई एम सो सॉरी फॉर इट। यामी और पुलकित, आप दोनों से मेरा सवाल है, हर साल बहुत लव स्टोरीज आती हैं और यू नो सबकी कहानी और थीम भी अलग होती है। ये जानना चाहूंगा, पहला सवाल ये है कि कितनी अलग होगी ये लव स्टोरी जुनूनियत की हम बात करते हैं। इसका जवाब मैं दूंगा, आप मत दीजिए। बिल्कुल अलग नहीं है, विवेक जी, अलग ही नहीं है। विवेक जी, लेट देम आंसर सर। मुझे मालूम, बता रहा हूँ, बिल्कुल अलग नहीं मुझे है। मालूम है आप बहुत हाजिर जवाब है। हर लव स्टोरी में पुलकित और यामी नहीं होते हैं। हर लव स्टोरी में पुलकित और यामी नहीं होते हैं और पुलकित पे अरमान की आवाज नहीं होती है और यामी इस तरह की रेड ड्रेस पहन के डांस नहीं करती है। तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफरेंट थिंग अबाउट दिस लव स्टोरी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या आप कभी हैव यू एवर फॉलन इन लव? क्या आप कितना रिलेट करते हैं अपने किरदारों तो से? लव में फॉल कर करके बदनाम हो चुका हूँ मेरे भाई। मैं इतनी बार लव में फॉल कर चुका हूँ। यामी, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कुछ यादें ताजा होती हैं? क्या आप रिलेट करती हैं जो किरदार आपने ऑन स्क्रीन निभाया है? मैं रिलेट करती हूँ उसकी पंजाबियत से। सुहानी कपूर का कैरेक्टर निभा रही हूँ। शी इज अ लोकल अमृतसरी पंजाबी गर्ल, खालसा कॉलेज अमृतसर। एंड तो मैं बहुत रिलेट करती हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस बिकॉज एज सर सेड नोबडी सीन मी लाइक दैट बिफोर। और मैं पूरा रिलेट कर पाई। हम अमृतसर में भी शूट किया है, वहाँ का खाना, वहाँ की लोकेल्स, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का देसीपन। आई एम वेरी देसी, सो आई टोटली लव्ड इट। और मैं इस पर्सपेक्टिव से, इस कैरेक्टर से रिलेट करती हूँ। प्यार से रिलेट नहीं करती? क्यों नहीं करती? हाउ कैन वी एग्जिस्ट पूरी कॉन्फिडेंस निकल गई प्यार की बात करते हुए। Thank you. Yeah, one last question over there. Yeah. Hi Vivek, Subrata from Filmikari. I just wanted to ask what's the reason? Filmikari. Yeah. I want to ask the reason behind this unusual trailer launch. We've already seen it with Sarabjit and we've seen it on YouTube 2 days back. So अब जाके आप वो कर रहे हैं ट्रेलर लॉन्च, तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी थी इसके पीछे? आप फ्री नहीं थे शायद।